के लिए. Now, I'm your biology teacher, Miss Aisha Abid. I'm going to start your chapter number 2. In that chapter, we are going to study about biochemistry. First of all, as we all know, biochemistry, it is a branch of biology which deals with the study of biological molecules or the chemistry of biological molecules. What are those biological molecules? We are going to study later. Biochemistry, it also deals with various chemical reactions. Chemical reactions, specifically those chemical reactions which are taking place in living organisms. All right, and hence these chemical reactions are known as metabolism. Included in metabolism, all those chemical reactions which are occurring in living organism. Because हमें ये पता है chemistry में बहुत सारे chemical reactions हैं जो कि हम lab में perform करते हैं, that are not occurring in living organisms, such as when we make a solution of HCl and NaOH and HCl, we are going to make salt NaCl. So in biochemistry, we are precisely studying about living organisms and all those chemical reactions that are occurring in living organisms, hence known as biochemistry. Bio, we already know it means bio meaning life. Biochemistry, it helps us or the biologist to understand anatomy, physiology, biotechnology, and informatics. Anatomy is what is the study of internal structures. Anatomy, study of structure, form, and structure of living organism is known as physiology. Biotechnology is the use of living organisms for the welfare of mankind. Bioinformatics is the use of or the study of living organisms in order to study different aspects of living organism, in order to study genes, in order to study proteins and other structures. Now, what are biological molecules in protoplasm? First of all, what is protoplasm? Everything inside the cell membrane is known as cytoplasm. Everything inside the cell membrane of a cell, we studied in chapter number 1. Cell is enclosed by a membrane known as cell membrane or plasma membrane, or everything which is included inside the plasma membrane is known as protoplasm. Whether it is nucleus, cytoplasm, or the organelles, this is known as protoplasm. Now we are going to study all the biological molecules because we learned in chapter number 1 that cytosol containing different molecules. It contains cytoskeleton, it contains enzymes, it contains protein, lipids, and different molecules such as hydrogen ions, specifically carbon, hydrogen, different types of ions, oxygen as well. And we are going to study all those biological molecules in the protoplasm of the cell. Biological molecules or biomolecules, is used for the same term, are different chemical compounds which are found in living things. Bio means living organisms, molecules means all those organisms, all those molecules which are found in living organisms. Chemical composition of protoplasm. First, we have to study what is the chemical composition of protoplasm. Biogenic or bioelements. These are the elements which are found in living organisms because these are bioelements, elements that are found in living organism. ये आपने term को देख के याद रखना है कि what are bioelements are found in earth, and bioelements, all those elements or chemical compounds which are found in living organisms. Approximately there are 25 elements, and out of 92 naturally occurring elements, 92 naturally occurring elements on earth, 25 of those elements are bioelements. all right, 92 92 एलिमेंट्स में से जो हैं 25 है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं. रेस्ट ऑफ अपार्ट फ्रॉम 25 दे आर नॉट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर जस्ट फाउंड इन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. So we are going to study only on biogenic or bioelements that are found in living organism, because in biology we are going to study living organisms or living beings. However, human body is composed of only 16 of these bioelements out of 25. आपको रिलेशन समझ आ रहा है कि टोटली अर्थ पे नेचुरली ऑकरिंग कितने एलिमेंट्स हैं? 92, जिनमें से 25 ऐसे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जबकि उन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बॉडी के अंदर उन 25 बायो एलिमेंट में से सिर्फ 16 पाए जाते हैं. बाकी जो 25 में से हैं, 25 एलिमेंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम 16, वो ह्यूमंस के अलावा बाकी ऑर्गेनिज्म में, फंगस में होंगे, प्लांट्स में होंगे. ठीक है, जैसे क्लोरोफिल है, ठीक है ये बायोमोलिक्यूल
लिविंग ऑर्गेनिज्म में है लेकिन ह्यूमन में नहीं है, सिर्फ प्लांट्स में है. These elements are classified on the basis of their proportion in organisms, and we are going to classify these 16 on the basis के कितनी परसेंटेज में ये ऑर्गेनिज्म की ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं. मतलब 90% ऑक्सीजन है, 2% ऑक्सीजन है, कितनी परसेंट है वो हम काउंट करेंगे. आई होप द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बायो एलिमेंट इज क्लियर नाउ. Coming towards classification of bioelements. We are going to classify these bioelements into major elements, minor elements, and trace elements. Major elements, these are basically, major it means bada, all right. The 6 commonest elements that constitute 99% of protoplasm are called major elements. ये चीज है ना कि जो चीज ज्यादा concentration में हम उसको कहेंगे ये major part है. When you are going to higher classes into the university, you are going to select some major subjects and some minor subject. Major subject क्या होगा जिसमें आपकी specialization होगी, जो आपने ज्यादा कोर्स का जो आपके मार्क्स होंगे उस पे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू स्पेशलाइज इन माइक्रोबायोलॉजी, सो यू विल बी स्टडिंग माइक्रोबायोलॉजी, जो आपका मेजर होगा. ठीक है, आपकी जो 4 जीपीए में से 3 जीपीए के मार्क्स होंगे वो आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने के लिए मिलेंगे. इसके अलावा आपको बायोकेमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, इसके अलावा आपको मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी और इंग्लिश भी पढ़ाते हैं. तो वो आपके माइनर सब्जेक्ट्स होंगे. लेकिन मेजर क्या चीज है जो सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट करती है? सो ऑल दोज एलिमेंट्स दैट आर द कॉमनेस्ट and that constitute 99% of the protoplasm, these are known as major elements. Minor elements कौन से हैं? That constitutes found or they are found in less than 1% in the body. They are minor elements. जैसे हमारी सोसाइटी में माइनॉरिटीज होती हैं, क्रिश्चियंस हो गए एंड डिफरेंट हिंदूज, पाकिस्तान की माइनॉरिटीज हैं, माइनर है, जो लेस जो है उनकी क्वांटिटी है, तो हम उसको उनको माइनॉरिटीज या माइनर्स कहते हैं. सो दीज आर माइनर एलिमेंट्स जो कि लेस क्वांटिटी में बॉडी में पाए जाते हैं. नाउ कमिंग टूवर्ड्स ट्रेस एलिमेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा लेस अमाउंट में पाए जाते हैं, कि बहुत ही कम अमाउंट्स में होते हैं. 0.1%, लेस देन 0.1% जो है वो ट्रेस एलिमेंट है. ठीक हो गया. अगर आपके पास 100% कोई चीज है फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 99% जो है वो आप फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें कि वो रेड कलर की है. 1% जो होगी वो होगी हमारे पास ब्लू कलर की. लेकिन जो अब 100% पूरा हो गया, लेकिन जो बिल्कुल 0.1% से भी कम थोड़ी सी जगह रह जाएगी, उसको वो हमें कहेंगे वो ट्रेस एलिमेंट्स है, कि वो बिल्कुल ट्रेस अमाउंट्स में है, बहुत ही ज्यादा कम, माइनर एलिमेंट से भी कम. The proportion of biomolecules, the bioelements combine with each other and form thousands of different biomolecules. Now, as we all know, different elements, different atoms join together to form elements. ठीक है, different elements जो है वो join together करेंगे to form a molecule. If they are bioelements joining together, they will be biomolecules. These biomolecules, they are then classified into organic molecules and inorganic molecules. Organic molecules will be water and minerals, and inorganic molecules will be carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acids. We are going to study all of these in detail. अगर हम यहाँ देखें, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में that we already studied, that 6 commonest bioelements account for most 99% mass of the body. 99% those bioelements जो हैं उनको हम क्या कहेंगे? मेजर एलिमेंट्स हैं, क्योंकि दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. तो सबसे ज्यादा क्या है? 65% तो ऑक्सीजन है, 18% कार्बन है, 10% हाइड्रोजन है, 3% नाइट्रोजन, 2% कैल्शियम एंड 1% फॉस्फोरस. इसके अलावा अदर बायोएलिमेंट्स जो कि 1% कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं कि ये पोटेशियम है और सल्फर है, क्लोरीन है, मैंगनीज, एंड दीज आर ट्रेस एलिमेंट्स. ऑलराइट, जो कि हमारे पास बिल्कुल ही ट्रेस अमाउंट्स में है, बहुत ज्यादा थोड़ी अमाउंट्स में. तो इस तरह हमारी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बायो एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा चीज क्या है? ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस. उसके बाद माइनर एलिमेंट्स आ जाते हैं. वो कौन से हैं? ये वाले, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम एंड मैग्नीशियम. जबकि आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, आयोडीन, these are trace elements. ठीक हो गया. Now, proportion of bioelements in bacterial and mammalian cell. In your book, that table is given. In that table,
बैक्टीरियल सेल एंड मेमेलियन सेल की कॉम्पोजिशन बताई हुई है कि वाटर जो है वो 70% है दोनों के अंदर, प्रोटीन जो है 15% है बैक्टीरिया में, लेकिन मेमेलियन सेल में प्रोटीन 18% है, कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरिया सेल में 3%, ह्यूमन सेल में 4%, लिपिड्स 2% है इनके अंदर, ह्यूमन के अंदर लिपिड्स 3% है, डीएनए 1% है, बिकॉज आपने देखा हो बैक्टीरिया का जो सेल है दैट इज लार्जर, उसके सेंटर में बहुत सारा डीएनए होता है, तो 1% उसका डीएनए है, जबकि ह्यूमंस के अंदर 0.26% है, बिकॉज द रीजन बिहाइंड इज दैट ह्यूमन के पास डीएनए के अलावा बहुत सारी ऑर्गेनल्स भी तो हैं जो कि बैक्टीरिया के पास नहीं है, सो वो जो कुछ पार्ट है वो ऑर्गेनल से कवर हो जाता है। आरएनए जो है बैक्टीरिया में ज्यादा है, ह्यूमन में बहुत कम है, 6% आरएनए, जबकि ह्यूमन में जो आरएनए 1.1% है। अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दोनों में 2% है, और इनऑर्गेनिक जो आयंस है वो 1% है। सो दैट इज द composition of biomolecules in bacterial and mammalian cell. Now coming towards fundamental kinds of biological molecules that we are going to study on the shade of inorganic molecules, because organic molecules हमने पढ़े they are water and minerals. Inorganic molecules में सबसे पहले हम पढ़ेंगे carbohydrates, then proteins, lipids and nucleic acids. Coming towards carbohydrates, they are present in inclusions of the cells and provide fuel for metabolic activities of a cell. हमने 10th क्लास में भी ये पढ़ा, 9th क्लास में भी ये टॉपिक था कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसके अंदर क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है बॉडी में, जो हम लोग फूड इंगल्फ करते हैं, उसमें से शुगर जितनी भी होती है, इसके अलावा जो बेसिकली हम ग्लूकोज को लेते हैं वो उसके ब्रेक डाउन करवा के एटीपी जनरेट करवाते हैं। सो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट एज अ फ्यूल यूज होता है। उसको हम फ्यूल, वही चीज है जो चीज एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रही है, उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेल्स की इंक्लूजन्स में होती है। हमने सेल्स की इंक्लूजन बॉडीज भी पढ़ी चैप्टर 1 में, कुछ स्मॉल इंक्लूजन्स होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं, और ये सेल को फ्यूल प्रोवाइड करती हैं इन ऑर्डर टू कैरी आउट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज and to generate ATP, which is the energy currency of the cells. Coming towards proteins, they are present in membranes, as we already studied in fluid mosaic model. Proteins जो थी सेल की lipid bilayer के अंदर, they were embedded in the lipid bilayer एंड एज अ चैनल एक्ट कर रही थी, मॉलिक्यूल्स को इन एंड आउट मूव करने के हेल्प कर रही थी। इसके अलावा राइबोसोम्स जो हैं, राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन होती है, राइबोसोम प्रोटीन्स को बनाते हैं। साइटोस्केलेटन में प्रोटीन्स होती हैं, दैट कि हमने साइटोस्केलेटन में पढ़ा कि ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, एक्टिन प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन है। तो ये सब चीजें प्रोटीन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में होती हैं, और एंजाइम, ऑब्वियसली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। सो सेल के अंदर हम किस तरह हमें प्रोटीन किस फॉर्म में नजर आती है। लिपिड्स आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन, एज वी ऑलरेडी स्टडीड द लिपिड बायलेयर जो था हमने पढ़ा, हर मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर से बनी होती है, उसके अंदर कुछ प्रोटीन एम्बेडेड होती हैं। Golgi membranes of Golgi complex, inclusions of the cell, सेल की जो inclusions होती हैं उनके अंदर लिपिड्स होते हैं, provide a reserved energy source, कि अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी को प्रोवाइडेड ना हो तो बॉडी अपने ही जो बॉडी सेल्स हैं वो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं एंड देन दे कन्वर्ट दैट लिपिड इनटू टू गेन एटीपी, टू गेन एनर्जी। अगर हम इनफ फूड इंगल्फ नहीं कर रहे तो हमारी बॉडी जो है वो, अगर हम ज्यादा लिपिड्स कंटेंट ले रहे हैं तो उसको ब्रेक डाउन करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन उसको एज अ फ्यूल भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, रिजर्व सोर्स है। शेप एंड प्रोटेक्ट द इंसुलेट द सेल, कि सेल लिपिड जो है वो एज इंसुलेटर एक्ट करता है और हमें जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और इंसुलेशन प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनल को जिसकी लिपिड बाइलेयर होगी। न्यूक्लिक एसिड क्या चीज है हमने पढ़ा, डीएनए या क्रोमोसोम में न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। हमने न्यूक्लियस पढ़ा था, आपको अगर याद हो, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस था और उसके बाहर जो हमारे पास डीएनए था। डीएनए के अंदर न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आरएनए या डीएनए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के होते हैं अंदर होता है, और ये क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है ये सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कि किस सेल ने कितनी प्रोटीन्स बनानी है, किस सेल ने कितने एटीपीज बनाने हैं, कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, कितने नहीं होंगे, ये सब की सब चीजें एक्टिविटी जो है कंट्रोल हो रही होगी with the help of nucleic acid. Nucleic acid RNA is present in nucleoplasm. Nucleoplasm क्या चीज थी, the liquid material which is present inside the nucleus, and cytoplasm is the liquid or the material which is present inside the cell is known as cytoplasm. Transmits genetic information. When cell divide by the cell of mitosis or meiosis, तो genetic information pass through होती है from one generation to another, from parent cell to daughter cell, and takes part in protein synthesis के अंदर भी nucleic acid जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। Coming towards condensation and hydrolysis. Condensation is the process जिसके अंदर हम लोग
कोई भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। अभी हमने कहा कि मॉलिक्यूल डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलके कंपाउंड बनाएंगे, तो वो प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू मोनोमर्स ज्वाइन करेंगे और डायमर बनेगा, तो वो प्रोसेस है कंडेंसेशन। और इसको भी डिटेल में भी पढ़ते हैं कि जब भी कोई टू मॉलिक्यूल्स व्हेन दे कंबाइन, हमने पढ़ा कि लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में क्या होता है कि दो अमाइनो एसिड ज्वाइन करते हैं और दो तीन चार पांच अमाइनो एसिड ज्वाइन करेंगे और वो लॉन्ग पॉलीमर बना लेंगे प्रोटीन का। तो दो मॉलिक्यूल ज्वाइन करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, एक मॉलिक्यूल से H रिलीज होगा, दूसरे मॉलिक्यूल से OH रिलीज होगा, और दोनों जो है वो ज्वाइन कर जाएंगे, जहां जहां से H और OH रिलीज करेगा तो वो डायमर बन जाएगा। मोनोमर मतलब एक मॉलिक्यूल, टू मोनोमर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ डायमर, टू मॉलिक्यूल ज्वाइन कर जाएंगे, जबकि H और OH रिलीज हुआ, H and OH obviously H2O will make water. So if the same reaction repeated several times, अगर हम बार बार कंडेंसेशन करवाएं, बार बार डायमर्स बनाते जाए एंड देन हम इन डायमर्स को भी कनेक्ट कर दें, तो वो क्या बनाएगा, बड़ा सारा पॉलीमर बन जाएगा। मोनोमर एक मॉलिक्यूल, डायमर टू मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर मैनी मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर बाय द प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन, जिसके अंदर वाटर जो है वो रिलीज हो रहा है फ्रॉम ईच मोनोमर। यहाँ पे देखें आप, ये एक मोनोमर है, रेड कलर का मॉलिक्यूल है, इसमें इसके साथ H और NOH अटैच है। ये दूसरा मॉलिक्यूल, इसमें भी H OH अटैच है। अब कंडेंसेशन जब होगी, इससे OH रिलीज होगा और इससे H रिलीज होगा, ठीक है। नाउ इट विल बिकम H2O, H2O से ये अलग वाटर बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट मॉलिक्यूल बना है ये डायमर है, ठीक है, डायमर है। और इस डायमर में यहाँ से H रिलीज हुआ था, सिर्फ H रह गया, OH रह गया, यहाँ पे OH रिलीज हुआ था, यहाँ पे H रह गया। So when two monomers they join together by releasing hydrogen and hydroxyl ion to make water, they will form a dimer. अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे H है और एक और अगर मोनोमर आए, इस वाले का ये H रिलीज होगा, इस वाले मोनोमर का OH रिलीज होगा, एक और मॉलिक्यूल अटैच हो गया, तो ये 3 मॉलिक्यूल्स का पॉलीमर बन गया। यहाँ से भी अगर एक और मॉलिक्यूल आए, ये वाला मॉलिक्यूल हम इधर प्रेस कर दें, ठीक है, इसका OH रिलीज होगा और इसका H रिलीज होगा, इधर से दोबारा से एक और वाटर रिलीज होगा, तो मोनोमर से डायमर, डायमर से पॉलीमर बन गया बाय द विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शंस, ठीक है, विद द रिलीज ऑफ वाटर। जितने मोनोमर ज्वाइन करेंगे उतना ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। आई होप आई एम क्लियर नाउ। इधर देखें, कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है कि ये टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इधर से H रिलीज हुआ, इधर से OH रिलीज हुआ। लेट मी मेक इट। यहाँ से आप देखें, इधर से ये H रिलीज हो रहा है और इधर से ये OH रिलीज हो गया। अब यहाँ देखें सिर्फ O रह गया, O दोनों O ने इधर इससे भी बॉन्ड बना लिया, इधर से इधर से बॉन्ड बना, यहाँ से एक वाटर रिलीज हो गया हमारे पास। नाउ दूसरा मोनोमर आया यहाँ पर, इधर OH था, इधर भी OH था, यहाँ से H रिलीज हुआ, यहाँ से OH रिलीज हुआ, ऑक्सीजन रह गया, ऑक्सीजन ने दोनों के साथ बॉन्ड बनाया, एक और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। So this is two molecule combination in which water molecule is released in order to make a polymer. Is that clear? The second reaction we are going to study is hydrolysis, in which water molecule, hydro water, lysis breakdown, in which reaction water molecule will be broken down in order to separate the polymer. यहाँ देखें, अगर हमने इस पॉलीमर को सेपरेट करना है, हमें वही ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी वाटर मॉलिक्यूल को वापस इस रिएक्शन में ऐड कर देंगे। यहाँ पर H आके इस O के साथ अटैच होगा और ये वाला OH इस मॉलिक्यूल, इस मोनोमर के साथ अटैच होगा। वापस हमारे एंजाइमेटिक रिएक्शन है, एंजाइम की हेल्प से हम ये करेंगे, वापस मोनोमर्स आ गए। सो मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू टू स्मॉलर वंस बाय इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक हो गया। कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन, दूसरे से हाइड्रोक्साइल आयन। जबकि हाइड्रोलिसिस में हमारे पास क्या हो रहा है कि वही वाटर मॉलिक्यूल को हम दोबारा एडअप करवा दें अगर सिस्टम में, तो हमारे पास मोनोमर्स, पॉलीमर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। इस कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं करना। हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। तो पहले हम वाटर की ब्रेक डाउन करेंगे ताकि मोनोमर्स बना लें। कंडेंसेशन में टू मॉलिक्यूल को कंडेंस कर देंगे। कंडेंस मिल्क क्या होता है कि दूध को हम बहुत ज्यादा पका लेते हैं तो वो कंडेंस की फॉर्म में बहुत ज्यादा ज्वाइन टुगेदर हो जाते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स है। कंडेंसेशन में क्या होता है, टू मॉलिक्यूल्स दे कंबाइन, दे जॉइन टुगेदर विद द रिलीज ऑफ वाटर। वाटर रिलीज हो जाता है और पूरा एक पॉलीमर जो है वो उसकी सिंथेसिस हो जाती है। नाउ अनदर टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म इज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लुक एट द टर्म। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब वाटर, वाटर की रिमूवल हो रही है
ठीक है। सिंथेसिस, साथ में सिंथेसिस भी हो रही है किसी चीज की। अब आप यहाँ देखें कि अभी कंडेंसेशन में हमने क्या पढ़ा था कि वाटर रिमूव हो रहा था और मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा था, ऐसा ही है। सो कंडेंसेशन इज आल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के वाटर डी किसी जब हमें वाटर नहीं मिलता तो ऑब्वियसली हम कहते हैं डिहाइड्रेशन हो रही है इस बंदे को, इसके अंदर वाटर की कमी है, वाटर रिमूव हो रहा है बॉडी से। सो कंडेंसेशन में तो ये हो रहा था कि मॉलिक्यूल में वाटर था, H2O था, लेकिन हमने उसको रिमूव कर दिया। इट इज बिकॉज वाटर इज रिमूव इन द प्रोसेस नोन एज डिहाइड्रेशन, और न्यू बॉन्ड जो फॉर्मेशन हो रही थी पॉलीमर में उसको हम क्या कर रहे थे, सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इट डज नॉट टेक प्लेस अनलेस द प्रॉपर एंजाइम इज प्रेजेंट एंड मोनोमर्स आर एक्टिवेटेड एनर्जी रिच फॉर्म। इसका मतलब ये है कि अगर प्रॉपर एंजाइम नहीं होगा तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस विल नॉट ऑकर। Now, what is dehydration synthesis? Dehydrate, water removal, synthesis, putting together to make, to synthesize. Dehydration synthesis is to remove water to put together a molecule. The purpose is that to store energy for later in newly formed molecules in the form of polymer जो हम बना रहे हैं, ताकि जब हमें energy चाहिए तो हम उसी polymer को break down करके energy ले सकें, ठीक है। What is happening there? Water is removed from individual monomer. हर मोनोमर में से वाटर को हम रिमूव करवा देते हैं, न्यू बॉन्ड्स जो है वो बन जाते हैं वाटर के रिमूवल से, एंड कनेक्टिंग मोनोमर्स टुगेदर जो कि पॉलीमर बनाने में हेल्प करते हैं, और एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है इन वाटर मॉलिक्यूल्स और द न्यूली फॉर्म्ड बॉन्ड्स। अदर टर्म हमारे पास है मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो मतलब लार्ज और मेजर। सो मैक्रोमोलिक्यूल इज अ हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड व्हिच इज मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। मतलब एक ज्यादा जिस चीज का वेट होगा हम उसको मैक्रो कहते हैं, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। सो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर द लार्ज और हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स which is made from repeating units। अभी हमने जो बहुत सारे मोनोमर्स अटैच कर लिए थे, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया था, दैट जो लार्ज मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट भी तो बड़ा हो जाएगा ना, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो, इन मॉलिक्यूल्स को हम बिल्ड करते हैं लाइक दैट, उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। रिमेंबर कंडेंसेशन में हमने पॉलीमर को जनरेट करवाया था। What are micromolecules? The molecules, individual units of polymers are known as micromolecules. जिनका जो molecular weight है वो कम होता है. These are known as monomers. हमने पढ़े थे जो small units होते हैं monomers. The interconversion of these carried out by condensation and hydrolysis. Remember हमने condensation and hydrolysis में क्या पढ़ा था? इसमें कि condensation में molecule join together, हाइड्रोलिसिस से इस मॉलिक्यूल को वापस हमने मोनोमर में कन्वर्ट, मोनोमर विल बी जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर विद द प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। दैट पॉलीमर, यही वाला सेम पॉलीमर है, इज जॉइंड टू विल बी स्प्लिट इनटू स्मॉलर यूनिट्स नोन एज मोनोमर्स बाय द प्रोसेस known as hydrolysis. So that was about hydrolysis. मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। माइक्रोमोलिक्यूल्स आर मोनोमर्स, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल, दैट इज मोनोमर, व्हाइल जो लार्ज मॉलिक्यूल है, दिस इज नोन एज पॉलीमर, दीज आर नोन एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। इन दो टर्म्स को कंफ्यूज नहीं करना। कमिंग टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? इट इज एसेंशियली द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, ये तो हमें पता है कि कंडेंसेशन का जो रिवर्स प्रोसेस है वो क्या है, हाइड्रोलिसिस, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ पॉलीमर इनटू मोनोमर्स बाय द एडिशन ऑफ वाटर, ये बात भी हमें पता है। ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस एंड hydroxyl group from water is attached to one monomer and hydrogen is attached to another monomer. It is exactly the reverse कि जब हमने, when we are doing condensation, we are removing OH group from one molecule and hydrogen from other molecule to make water which is H2O. Hydrolysis में क्या करेंगे? We are doing what is that we are going to attach hydroxyl group to one molecule and hydrogen to other molecule or other monomer to make a complete monomer, to make it complete. All right. Actually all digestion reactions are example of hydrolysis। जैसे बॉडी में डाइजेशन होती है तो उसमें क्या होता है कि एंजाइम जो है वो रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, कार्बोहाइड्रेज, प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लियस। कार्बोहाइड्रेज एंजाइम कौन सा जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, लाइपेज एंजाइम लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा, न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगा। सो दे आर डूइंग हाइड्रोलिसिस, दे आर अटैचिंग the hydroxide and hydrogen ion to each monomer so that they are going to break up the molecule, water molecule, in order to digest the substances. So that was about hydrolysis. Now we are going to compare dehydration synthesis and hydrolysis. In this diagram